How many incidents of Griffin's lawlessness have we studied till now? My question is, how many incidents of Griffin's lawlessness have we studied till now? Number बताओ. Two. बस दो. So which ones? Lakshay, tell me which ones. यार 10th F तुम लोग बोलते नहीं हो. Till that showroom one only. ओ तुम्हारी क्लास तो बड़ी पीछे चल रही है इसका मतलब. चलो ठीक है, because in 10th D I have already finished with this chapter. Right. So Veer, is your mic working? Veer, किसका माइक वर्क कर रहा है यार? पहले खुद ही बता दो. आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम. वैभव, ठीक है रुक जाओ. वैभव तुमसे ही बनवाती हूँ. Now, children, okay, Veer's mic is also working. Raj Shekhar's is also working. Good. Now, children, if you remember, हमने ये पढ़ा था स्टोरी में that Griffin is a scientist, and we had also discussed that he was a lawless person. तो जरूरी नहीं है that if you are very intelligent, you have to be law abiding also. Griffin was a lawless person. और वो क्या करता है, he also had very short temper. He loses his temper always, and plus he was inclined to do unlawful activities. तो जब उसका लैंडलॉर्ड उसको वहां से हटाना चाहता है घर से, rather than simply going peacefully, what he does is he sets fire to the landlord's house, and then in order to escape unseen, he takes off all his clothes. So then he becomes without clothes, roaming about in London in the mid January chilly air, right? Then again we see कि वो स्टोर में जाता है, वहां से वो सारे कपड़े वगैरह चुरा लेता है, खाना खाता है, but he was not able to wake up in time when he was sleeping on the quilts, right? So again, then when the storekeepers start chasing him, again he had to take off his clothes, right? And third thing, then we see that तो ये 3 इंसिडेंट्स हो गए बेटा, 2 इंसिडेंट्स नहीं हुए. इसका मतलब तुमने रॉन्ग आंसर लिखा था. यहां तक पढ़ा है. इसके आगे हमने शॉपकीपर वाला इंसिडेंट पढ़ा है. somebody tell me, है ना? तो थर्ड इंसिडेंट क्या होता है, देन ही डिसाइड्स दैट ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आई हैव टू वियर क्लोथ्स ऑल्सो, प्लस आई हैव टू वियर समथिंग ओवर माई फेस ऑल्सो, सो दैट माई फेस डजंट seem to be invisible to everyone. So he goes into a theatrical company, and from there, apart from clothes, he also takes mustaches and goggles and a nose and big whiskers, side whiskers, and some bandages, and he wraps them around his face so that now he has a face over his shoulders, right? और जब वो वहां से निकलता है तो तीसरी लॉलेस बात वो क्या करता है, he hits the shopkeeper from behind to steal the money of the shopkeeper. He hits the shopkeeper from behind, takes all his money, and then goes away from here there. ठीक है, हमने यहां तक पढ़ लिया था. So वीर, प्लीज स्टार्ट रीडिंग बेटा. जस्ट अ सेकेंड, आई फ्लैश इट. Okay, so we have read till here. Veer, please read away from here. Eager to get away from the crowded London. Eager to get away from crowded Yeah. London, a train to the village of Iping, where Veer, your voice is not audible. Can you be a little louder? वी, डू आई गेट एन आंसर फ्रॉम यू? बेटा तुम्हारी आवाज नहीं सुन रही है. ओके वैभव, कैन यू रीड?
हाँ वैभव तुम पढ़ो प्लीज. वैभव बेटा रीड. ओके. Okay, Vaibhav, रहने दो. Even your mic is not working. Rajshekhar, is your mic working? Snehadeep, Sneha, तुम्हारा काम कर रहे Yes, हैं? ma'am. एक सेकंड राज. Sneha, Snehadeep, is any one of yours mics working? राज तुम ही पढ़ो बेटा. I think there's some mic problem with these people. यहाँ से पढ़ो. Eager. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. The arrival of a stranger at an inn in winter was, in any case, an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish." Hmm. And in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. Okay, very good, Raj. Shortly Thank you. afterwards, a curious Okay, episode thank you, beta. occurred. Thank you. Very eagerly in the morning, a No, Raj. clergyman Thank and his you. wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Without Okay, thank you, Raj. making any Thank noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. "Surrender." Raj, that was all. Nilansh's mic is also working and Vaibhav's mic is also. Okay, Veer, so maybe next time let me just explain. तो अब क्या होता है ग्रिफिन के साथ बेटा. ही वॉज नॉट हैविंग वेरी गुड एक्सपीरियंसेस इन लंदन. तो उसका काम नहीं चल रहा था लंदन में. एंड ही ऑल्सो फेल्ट दैट लंदन इज वेरी क्राउडेड. बार बार आई हैव टू you know come in contact with people. So what he decides is that I will leave London and I will go to a village. And what was the name of the village? The village's name was Iping. And what he does is he books 2 rooms at the inn Your over voice there. breaking. My voice is breaking. Okay, let's give it some time. Okay, is my voice clear now? Somebody tell me. Yes, Yes, ma'am. ma'am. It's clear. Yeah, so he books 2 rooms at the local inn. Now, my question to you, class, is why was Griffin's arrival in the village of Iping set all the tongues wagging? All the tongues wagging मतलब सबके tongues हिल रहे थे. Tongues हिल रहे थे मतलब सब लोग बातें कर रहे थे उसके बारे में. सब लोग उसके बारे में बोल रहे थे. So tell me, why everybody was talking about the arrival of Griffin in the village of Iping? Ma'am, because he had an unusual appearance and his face was fully covered with bandages, Okay, one and reason he is was this. Because he paid his due rent, whereas earlier he was not able to pay it. Okay, any other reason? No
other reason? Okay, tell me, children. See, is winter a tourist season? Is winter a tourist season or summers are No, ma'am. tourist season? Summers. Summers are tourist season. Now just imagine if you have some foreigners coming and staying in Jodhpur in June, middle of June. तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, अरे ये जून में यहाँ क्या कर रहे हैं, इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हैं? Do you all agree with How me? are you? हाँ, हाउ आर यू? वेरी गुड बेटा, मैं यही इंटेलिजेंस लेवल एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे. अब क्लास में ध्यान दो. Just imagine that if you see some foreigners in the middle of summers when it is not the tourist season coming and staying in Jodhpur, we also wonder now why have they come here in summers? तो इतनी गर्मी होती है, कोई नहीं आता है, ये लोग गर्मी में यहाँ क्यों आते हैं? Do you all agree with me? Yes or no? Yes. Similarly, Griffin has gone to Iping in the middle of winter season. Britain में क्या, how do I put it? There is a generally people ना, they go to the countryside to spend their vacations. तो वो शहरों को छोड़कर villages में जाकर अपनी vacation spend करते हैं. तो ग्रिफिन ने क्या किया है, वो भी एक विलेज में चला गया है, लेकिन टूरिस्ट सीजन नहीं था तब गया है. तो ही बिकम्स द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द विलेज. तो सब लोग उसके बारे में बात करते हैं कि एक ना स्ट्रेंजर आया है, एंड ऑफ कोर्स ही लुक्ड सो ऑड, ही बिहेव्ड सो ऑड. तो और भी ज्यादा लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं कि एक स्ट्रेंजर आया है. एंड ही बुक्स 2 रूम्स. एंड जो उसके लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उसका नाम है मिसेस हॉल. सो वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू अनदर कैरेक्टर. शी वॉज अ वेरी क्यूरियस एंड इंक्विजिटिव लेडी. उसको सबके मामलों में अपनी टांग अड़ाने में मजा आता था. शी वॉज अ टिपिकल वेरी वेरी क्यूरियस लेडी. सो शी ट्राइड टू बी फ्रेंडली. वो चाहती थी कि वो ग्रिफिन से फ्रेंडशिप करके उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ले. तो वो ग्रिफिन से काफी बात करना चाहती है, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक. लेकिन ग्रिफिन बात नहीं करना चाहता, और वो उसको क्या बताता है, दैट माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. कि मैं इस मौसम में आइपिंग में इसलिए आया हूं बिकॉज आई डिजायर सॉलिट्यूड. आई वॉन्ट टू बी अलोन. आई डोंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब्ड. एंड he also gives an explanation as to why he looks that way. अब देखो ग्रिफिन ने, we all remember ना, क्या किया था, अपने फेस पे बैंडेज बांधी हुई है और नकली नाक है उसकी, नकली मूछें हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब दिखता है. तो वो इसकी भी एक्सप्लेनेशन देता है और बोलता है कि एक मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से माय फेस हैज गॉट अफेक्टेड. सो इट इज बेटर इफ आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड, इफ यू लेट मी बी अलोन एंड इफ नोबडी टॉक्स टू मी. तो अब मिसेस हॉल थी, वो सेटिस्फाई हो जाती हैं दैट दिस मैन इज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट. एसेंट्रिक मतलब सनकी. सनकी समझते हो सब? कोई ऐसा पर्सन जो अपने आइडियाज से, अपने बिलीफ सिस्टम से हिलता नहीं है. तो उनको लगता है कि ठीक है, ये साइंटिस्ट है, थोड़ा सा सनकी है, डजंट मैटर. और एक और रीजन क्या था कि ग्रिफिन ने उनको, ही हैड पेड हर इन एडवांस में सारे पैसे दे दिए थे. So Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Irritable temper का मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? 10th F, irritable temper का क्या मतलब होता है? राज, तुम्हें भी नहीं पता? प्रियल, लक्की? मैम जो गुस्सा बहुत ज्यादा इरिटेट करता हो. इरिटेट करता हो किसी का? नहीं, सुनो मेरी बात. इरिटेट करता हो या इरिटेट हो जाता हो? हो जाता हो. यस, जो इरिटेट करता है उसको हम बोलते हैं इरिटेटिंग. सो ही इज वेरी इरिटेटिंग मतलब ये बहुत इरिटेट करता है. ही इज इरिटेबल मतलब ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है. So here we come to know that Griffin is short-tempered, hence he gets irritated very fast. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. तो मिसेस हॉल उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं.
हालांकि उसकी हैबिट्स बड़ी स्ट्रेंज थी, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता था, बट मिसेस हॉल को क्या लगता है कि ही हैज कम इन माय हाउस, ही इज गिविंग मी मनी, सो हु एम आई टू इंटरफेयर। लेकिन अभी ग्रिफिन का जो मुसीबत होती है वो अभी फिनिश नहीं हुई है। उसके ऊपर एक और मुसीबत क्या आ जाती है, दैट हिज स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। जो मनी वो शॉपकीपर से चुरा कर लाया था वो मनी बहुत दिनों तक नहीं चलता है। एंड ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब जो वो रह रहा है तो उसको बार बार मिसेस हॉल को पैसे देने पड़ रहे हैं किराए के। तो एक दिन वो मिसेस हॉल से एडमिट कर देता है, वो कन्फेस कर लेता है कि अब मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। उसके आगे भी वो बहाना लगाता है और क्या बोलता है, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि अभी मेरे पास कैश खत्म हो गया है लेकिन मैंने चेक मंगाया है, कभी कभी थोड़े दिनों में मेरा चेक आ जाएगा और तब मैं आपको वो चेक दे दूंगा, तब तक आप मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। राइट, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? 10th F तुम लोग बिल्कुल नहीं बोलते हो, बाय गॉड मेरे को गेस करना पड़ता है। एनी प्रॉब्लम टू हियर? ओके, नाउ टेल मी हु विल रीड, जिसका माइक अच्छे से काम कर रहा है, somebody has to read. Priyal, okay Priyal, please read beta. Start from here. Shortly afterwards. Shortly afterward, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noise in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door suddenly. Then, to his assumption, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtain and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money and Okay, very good Priyal. Thank you बेटा। ठीक है, तो अब ग्रिफिन के साथ वी नो दैट wherever Griffin goes, lot of incidents occur. Now another incident is occurring. क्या होता है, एक क्लर्गी मैन होता है आइपिंग में। नाउ क्लर्गी मैन इज अ पर्सन हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ द चर्च, राइट? वो चर्च में रहते हैं, सो इज ऑलमोस्ट लाइक अ प्रीस्ट, बट पूजा करने के अलावा भी वो चर्च के बाकी सारे कामों का भी ध्यान रखते हैं। So there was a clergyman and his wife living in Iping, and suddenly एक दिन वो सुबह सुबह उनकी नींद खुलती है क्योंकि उनके स्टडी रूम से कोई आवाजें आ रही होती हैं। तो वो नीचे जाते हैं तो उनको क्या आवाज सुनती है कि जैसे मनी जो है, पैसा जो है वो उठाया जा रहा है। तो whenever the coins they strike with each other, there is a peculiar sound that comes. पैसे की एक दूसरे के साथ टकराने की, कॉइन्स की एक दूसरे के साथ टकराने की एक स्पेसिफिक आवाज होती है जिसको चिंक ऑफ मनी बोलते हैं। तो उनको वो आवाज भी आती है कि कोई उनके ड्रॉअर से पैसे चुरा रहा है, उसकी आवाज भी उनको आती है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों आवाज नहीं करते और क्लर्गी मैन एक पोकर उठा लेता है। नाउ माय क्वेश्चन टू द क्लास इज, डू यू नो व्हाट इज अ पोकर? मुझे कौन बताएगा पोकर क्या होता है? लक्की, तुम मेरे लैपटॉप का टाइमिंग क्यों देख रहे हो यार? तुम्हें क्या लेना? हाँ तो 12:15 तक होती है ना तुम्हारी क्लासें। लक्की, एनीथिंग यू वांट टू टेल मी बेटा? टाइप इट। मैम आपका टाइम 5 मिनट आगे चल रहा है।
मेरा टाइम 5 नहीं 4 मिनट आगे चल रहा है, मुझे पता है। Yes. हाँ 4 मिनट, नॉट 5 मिनट। ओके, पोकर इज अ गेम ऑफ कार्ड्स, यस ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे उसका मीनिंग नहीं है। पोकर का एक और मीनिंग होता है, किसी को पता है? इट इज रिलेटेड टू चिमनी, चिमनी एंड फायर। Anybody knows? Yes, Vaibhav, you are right. It is a metal rod, but what is its function? What is the function of the metal rod? Anybody can tell me? Blowing, फूक। No. हे भगवान। ओके, अब ध्यान से सुनो सब। देखो, ब्रिटेन में क्या होता है, लोग अपने घरों में चिमनी के अंदर जो एक फायर प्लेस होता है वहां पर आग जला के रखते हैं। और अगर आपने कभी कैंप फायर या आग जलाई होगी, स्पेशली सर्दियों में, तो आपने देखा होगा कि बार बार उस आग में लकड़ियों को हमें हिलाना पड़ता है ताकि अंदर तक ऑक्सीजन जा सके। एंड यस लक्ष्य, यू हैव रिटन राइट, फॉर स्टरिंग अ फायर, ताकि लकड़ियों में अंदर तक ऑक्सीजन चला जाए और जो फायर है वो अच्छे से बर्न करे। अब ऑब्वियसली यार, ब्रिटेन में तो वीर ने लिखा ना फूकनी, ब्रिटेन में बेटा दे डोंट यूज फूकनी, ओके वीर, दे यूज अ पोकर। अगर आपने हॉरर मूवीज देखी हैं तो कभी ध्यान से देखना, जब भी सीन फायर प्लेस पे फोकस करता है तो वहां से वो लोग ना एक रॉड उठा लेते हैं, 3-4 रॉड लिखी होती हैं, और एक रॉड उठा लेते हैं और फिर वो विलन या हीरो एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तो ये पोकर क्या करता है, इसको पोक करने के लिए यूज करते हैं। वैभव, तुमने कहाँ लाइव देखा? यू हैव टू टेल द क्लास बेटा। न्यूज में क्या? What did you watch in the news, Vaibhav? Okay, winter में, yes. It's a very common sight. It's just that we tend to just overlook it. तो वो जो पोकर्स होते हैं वो फायर के पास पड़े होते हैं ताकि हम फायर को स्टर कर सके, ताकि हम फायर को पोक कर सके, जिससे वो फायर अच्छे से जले और फिर रूम को वार्म कर सके। तो क्लर्गी मैन क्या करता है, उसी पोकर को उठा लेता है एंड ही फ्लंग्स ओपन द डोर, और वो डोर को खोल देता है। और वो क्या चिल्लाता है, सरेंडर, कि तुम लोग सरेंडर कर दो। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. अब उसने क्या सोचा था कि अंदर मुझे कोई दिखेगा, लेकिन अंदर कौन होता है, कोई नहीं होता है। The room was empty. Now they start searching. They look under the desk, behind the curtains, even up the chimney. चिमनी में भी देख लेते हैं वो कि कहीं यहाँ तो नहीं छुप गया है। But there wasn't a sign of anybody. And why was that? Because Griffin तो इस time invisible हो गया था. He had not worn any clothes, so he was invisible. So even if he had been standing right in front of them, the clergyman and his wife would not have been able to see him. लेकिन डेस्क खुला था और सारा जो उनका घर चलाने का खर्चा था वो सब वहां से कोई चुरा कर ले गया था। यहां तक समझ में आया? Yes, ma'am. Yeah. Now tell me, who will read? Who will read? कौन पढ़ेगा? Come on 10th F, little bit more participation from your side. कोई नहीं पढ़ेगा? वीर को पढ़ना है? ओके अभिषेक पढ़ो बेटा। अभिषेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर से पढ़ो। Extraordinary as the behavior of Miss Hall's furniture a little later that morning. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the door. So seemed too good to be missed. They peeped
round the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and the stranger still the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. All of a sudden, Miss Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, that hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. Springing into the air, it charged straight at her legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. Okay, very good, beta. Thank you. So, extraordinary affair. Clergy man kept saying for the rest of the day. और पूरे दिन clergy man फिर क्या बोलता रहा? कितनी अजीब बात है ना, कितना extraordinary बात है कि ऐसे कैसे मेरे पैसे चोरी हो गए और कोई वहां पे था भी नहीं. लेकिन उससे भी ज्यादा extraordinary क्या होता है? उसी दिन मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर. मिसेस हॉल का फर्नीचर कैसे बिहेव करता है? लेट्स सी. तो उस दिन जो लैंडलॉर्ड मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड जो थे वो बहुत पहले मतलब थोड़ा सा जल्दी जग गए होते हैं. आप वेरी अर्ली मतलब थोड़ा सा जल्दी जग गए थे और वो क्या देखते हैं कि जो साइंटिस्ट है, जो ग्रिफिन है, उसका जो रूम का दरवाजा है इट्स वाइड ओपन, वो पूरा खुला हुआ है. यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक. तो जनरली ग्रिफिन के रूम का दरवाजा शट होता था और लॉक्ड होता था. एंड ही यूज्ड टू गेट वेरी फ्यूरियस. उसको बहुत गुस्सा आता था इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. So he did not allow anybody to enter his room for cleaning, for giving him food, or for anything else. He did not allow anybody to enter his room. And his room always used to be shut. But today they found that his room was wide open. क्योंकि ग्रिफिन कहाँ गया हुआ था? क्लर्गी मैन के घर में चोरी करने गया हुआ था, तो अपने रूम का दरवाजा खुला छोड़ गया. The opportunity seemed too good to be missed. And Mrs. Hall, we already know, she was a very curious, inquisitive lady. तो अब उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो ग्रिफिन के रूम में छानबीन कर सके, अपनी क्यूरियोसिटी मिटा सके. तो वो इस मौके को नहीं जाने देने वाली है. और वो क्या करती है, वो और उसका हस्बैंड दे पीप राउंड द डोर. तो पहले वो दरवाजे में से झांक के देखते हैं. सॉ नोबडी, तो उनको कोई नहीं दिखता है. And then they decided to investigate. तो उनको लगता है रूम खाली है, let's go inside the room, let's look at his things, let's investigate कि कौन है, क्या करता है. तो वो क्या करते हैं, पहले बेड को टच करते हैं. एंड द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड. इसका क्या मीनिंग है? जब सर्दी के मौसम में हम सोते हैं तो हमारा बेड, क्विल्ट्स, ब्लैंकेट्स वो सब वार्म हो जाते हैं. और थोड़ी देर के बाद जब हम बेड को छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो कोल्ड हो जाते हैं. तो वो जब बेड क्लोथ्स को छू के देखते हैं तो वो बेड क्लोथ्स कोल्ड होते हैं. इसका मतलब वो समझ जाते हैं कि जो साइंटिस्ट है he must have gone somewhere. He also must have gotten up early and now he has gone out to maybe to run or maybe to take a walk or something. तो showing that the scientist must have been up for some time. तो बेड क्लोथ्स ठंडे होते हैं, इसका मतलब साइंटिस्ट भी बहुत पहले उठ गया था. एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और उसके अलावा एक और स्ट्रेंज थिंग वो क्या नोटिस करते हैं, दैट द क्लोथ्स एंड द बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. कि जो कपड़े ग्रिफिन पहनता था और जो बैंडेजेस ग्रिफिन पहनता था वो भी रूम में इधर उधर पड़े हुए थे. मतलब ग्रिफिन अपने रूम में कपड़े और बैंडेजेस निकाल के कहाँ गया हुआ था? वो क्लर्गी मैन के घर पैसे चोरी करने गया हुआ था. इतने में पीछे से मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड उसके रूम को इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं. राइट, यहां तक सबको समझ में आ गया? अंडरस्टूड टिल हियर? ओके. तो अब क्या होता है, जब मिसेस हॉल वहां पे खड़ी हुई थी, शी हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो कैसे हम हमेशा अपनी नोज से ब्रीथ करते हैं ना, ऐसे करके. दिस इज कॉल्ड एज स्निफिंग. नाउ हु विल टेल मी why, who was sniffing and why was he sniffing?
कोई बोलो मुझे, स्निफ कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था? Griffin, ma'am. Griffin was sniffing. Why? Because he was not wearing clothes Yeah, and it was because winter of season. course, of course, winter season था. बेचारे ग्रिफिन को बार बार इनविजिबल होने के लिए अपने क्लोथ्स को निकालना पड़ रहा था, इसलिए उसको ठंड लग गई थी. तो मिसेस हॉल को क्या सुनाई देती है? अपने कान के पास एक स्निफ सुनाई देती है, और उसी के एक सेकंड बाद, अ मोमेंट लेटर, वो क्या देखती है कि बेड पोस्ट के ऊपर एक हैट रखा हुआ है, और ऐसा लगता है जैसे कि वो हैट खुद डैश करके उसके फेस के ऊपर आया है. डैश मतलब इट इज फ्लाइंग इन द एयर एंड इट हैज हिट हर फेस. तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा? ग्रिफिन वहां पे खड़ा हुआ था, उसने उस हैट को उठाकर मिसेस हॉल के तरफ फेंका होगा. सो यू ऑल कैन अप्रिशिएट द सीन. बट मिसेस हॉल तो ग्रिफिन को देख नहीं सकती हैं, तो उनको एक्चुअल में क्या दिख रहा है कि हैट खुद उड़ के उनके फेस की तरफ आ रहा है. और फिर क्या होता है? द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और ऐसा लगता है जैसे बेडरूम की चेयर भी जिंदा हो गई है. व्हाट इट डज इज स्प्रिंगिंग इनटू द एयर. तो वो एयर में उड़ जाती है वो चेयर. एक्चुअल में क्या हुआ है? ग्रिफिन ने उस चेयर को ऊपर उठा लिया है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जब एक इंसान चेयर को पकड़ के ऊपर उठाता है एंड यू कैन नॉट सी द पर्सन, तो कैसा लगेगा कि जैसे वो चेयर खुद ही हवा में उठ गई हो. इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट, और ऐसा लगता है जैसे वो चेयर मिसेस हॉल की तरफ भागी है, और जो चेयर के लेग्स हैं वो मिसेस हॉल की तरफ हैं. मतलब आप देख सकते हो ना, जब हम चेयर को उठाते हैं और लेग्स हमसे दूर होते हैं, तो उस ढंग से ग्रिफिन उस चेयर को उठाकर मिसेस हॉल को रूम से बाहर भगा रहा है. मिसेस हॉल को क्या लग रहा है कि ये चेयर खुद ही जिंदा हो गई है और ये मुझे इस रूम से बाहर भगा रही है. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam the lock on the door after them. अब मिसेस हॉल और उसका हस्बैंड वो डर जाते हैं और वहां से भागने लग जाते हैं. और उससे भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज क्या होती है? दैट नॉट ओनली डज द चेयर पुश देम आउट ऑफ द रूम, इट स्लैम्स द डोर. वो दरवाजा भी तेज से बंद करती है, और उसके बाद वो दरवाजे में अंदर लॉक भी लगा लेती है. तो एक्चुअली में क्या हो रहा था? एक्चुअली में ग्रिफिन ये सब कर रहा था, बट क्योंकि मिसेस हॉल उसको देख नहीं पा रही थी, तो उनको लग रहा था कि ये चेयर खुद ही ये सारे काम कर रही है. राइट. नाउ टेल मी चिल्ड्रन, हैव यू फिनिश्ड, नहीं, हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, ma'am. Okay, only 13 students have come in the class today. All right, children, that was all for today. We'll continue with the class tomorrow. For your homework, just read the chapter once again. Okay. Thank you. You may leave the class. Good day, ma'am. Yeah, same to you, beta.